Hello everyone, my name is Amrita Pokhariya. I'm a management faculty, life skill coach and a writer. And today I'm here to talk about very important skills जो कि आज के समय में everyone is very much concerned about it. There are two types of skills required in a profession or maybe in a business, hard skills and soft skills. It's very important to understand what are these skills. When we talk about hard skills, these are basically a technical knowledge of your business area. If you're an engineer, the technical knowledge of your field. If you are a marketing person, then you should be knowing all the marketing concepts, marketing theories. If you are a HR person, you should be aware of all the laws and legal requirement of employment. So these all are hard skills. Then what are soft skills? When we talk about soft skills are basically personal behaviors or traits which shape the way you work. बेसिकली आपका काम क्या है या आपको उसके लेके क्या नॉलेज है, दैट इज हार्ड स्किल्स. लेकिन आप वो काम कैसे करते हो वो सॉफ्ट स्किल डिफाइन करता है. और सॉफ्ट स्किल्स जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है? सी, आप किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे और मे बी अ बिजनेस, देयर विल बी पीपल. आप लोगों के साथ काम करोगे और जब आपको किसी के साथ काम करना है तब सॉफ्ट स्किल्स बहुत मैटर करती हैं. I'll give you an example. This phone, iPhone. Recent सर्वे में आया है that this is the best phone at this point of time. इस साल के हर साल के जो सर्वे निकलते हैं, and why this is best? Because it is a perfect combination of hard skills and soft skills. Functionality wise, technically, this mobile phone is very strong. At the same time, when we talk about looks, sleekness, design. So this is how nowadays in business, in profession, everyone is looking for someone who is a perfect blend, or I would say perfect mixture of hard skills and soft skills. So it's very important that we need to understand soft skills भी उतनी ही important है. In my पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं कॉर्पोरेट की 10 ईयर्स की जर्नी लेकर आती हूँ और उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि आजकल कंपनीज देखती है कि इस कैंडिडेट में सॉफ्ट स्किल्स भी है या नहीं और वो इक्वल लेवल पे है या नहीं, बिकॉज इक्वली बोथ द स्किल्स मैटर्स अ लॉट. Now when we talk about soft skills, there are many. Few of them we all talk about it, that effective communication. This is one of the soft skills. But there are many. Teamwork, problem solving skills, I would say creative skills, again empathy. All these are kind of soft skills. Now it is very important for us, for every person to find out कि कौन सी सॉफ्ट स्किल है जिसे उनकी कौन सी सॉफ्ट स्किल है जिसे वो उन्हें इम्प्रूव करनी है. बिकॉज एवरी वन हैज डिफरेंट टैलेंट, डिफरेंट स्किल्स. कोई कम्युनिकेशन में अच्छा होगा बट टीम वर्क में दैट पर्सन इज लैकिंग. समवन इज वेरी गुड एट टीम वर्क बट कम्युनिकेशन इज द बैरियर. सो यू नीड टू फाइंड आउट, आइडेंटिफाई करना. फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई करना दैट on which skill you should be working. Second step is that practice. अगर आप genuinely अपनी किसी सॉफ्ट स्किल पे काम करना चाहते हैं जो कि आपको लग रहा है आपकी करियर की ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में कहीं ना कहीं बैरियर बना हुआ है, तो प्रैक्टिस फॉर दैट. यू हैव टू मेक श्योर दैट इट बिकम्स रिचुअल, दैट वो स्किल जो है वो आपकी हर चीज़ में कहीं ना कहीं डेली प्रैक्टिस में आ रही है. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट कंटिन्यूसली इवैल्यूएट एंड देन just improve on that. So it is a continuous process. It's not एक दिन का काम नहीं है कि हम उठे और सोचा कि आज मुझे टीम वर्क की स्किल सीखनी है, हमने वीडियोस देखे और हो गया. No, it's not like that. You have to continuously work on your skill. Now today I will be talking about one of the soft skill, which is communication skill, and I usually train people for that, students and corporates, on communication skills. So आज मैं आपको कुछ tips देने वाली हूँ on communication skills. सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट लोगों के दिमाग में ये है कि मुझे स्टेज फियर है एंड दे बिलीव कि ये जो स्किल है ये बाय बर्थ आती है. नो, इट्स नॉट अ इनहेरेंट स्किल. ये एक ऐसी स्किल है और ऑल द सॉफ्ट स्किल्स आर दो स्किल्स जिनको हम सीख सकते हैं. तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरे पास ये स्किल नहीं है, वो बहुत अच्छा बोलता है, उसको बाय बर्थ ये टैलेंट है. नो, आप भी वो स्किल सीख सकते हो. फर्स्ट थिंग. एंड स्टेज फियर, a survey says that 97% on this earth people says that उनका biggest fear है stage fear. So you are not alone there. बहुत लोग हैं, मैक्सिमम लोगों को स्टेज फियर होता है. इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, जितने भी अच्छे स्पीकर्स हैं उनके बैक स्टेज, इफ यू सी देयर वीडियो,
They all have stage fear, but they do something. They have a technique in their mind just to make themselves calm. So stage fear hona is nothing to worry about. You can work on that. Second tip, that पब्लिक स्पीकिंग की जगह, हाउ टू स्पीक इन पब्लिक की जगह आप इस पे काम करिए, दैट हाउ टू कनेक्ट विद पीपल. स्टेज पे जाके जो दिमाग में है वो बोल के आ जाना आसान है, लेकिन हमें अगर किसी को अपनी बात समझानी है तो सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा. वी शुड बी एबल टू कनेक्ट विथ पीपल, और वो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमारी पूरी बॉडी, हमारे इमोशंस, हमारे माइंड सब उसमें इंक्लूडेड होते हैं. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है हमेशा फोकस करें कि सिर्फ स्पीकिंग पार्ट पे फोकस नहीं करें, कनेक्शन, हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड ऑडियंस, दैट मैटर्स अ लॉट. Next tip about working on your soft skills, especially communication skill, is practice. Practice makes a man perfect, and that is very important that you practice. कहीं पर भी आपकी कोई भी छोटी सी भी प्रेजेंटेशन है, so practice आप कांच में देख के करो, अपना वीडियो बना के खुद से अपनी वीडियोस देखो, अपने फ्रेंड्स के सामने प्रैक्टिस करो, रिहर्सल करो. प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है. One of the other thing which is very important to improve your communication skill is that जब भी whenever you are going to speak in a public appearance है, तो स्टार्टिंग के जो 20 से 30 सेकंड होते हैं ना, वो सबसे क्रूशल टाइम होता है, और वो टाइम डिसाइड करता है कि ऑडियंस आपसे कनेक्ट करने वाली है या नहीं. So your starting should be very strong, and I usually recommend in my technique is that start with a question. बिकॉज आप जब किसी से क्वेश्चन पूछते हो ना, तो सामने वाले को लगता है कि यार ये कुछ ऐसा बोलने वाला है जो मुझे नहीं आता है, या इसने जो मुझे पूछा है ये मुझे नहीं आता है. अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए कि येस आई एम अ नॉलेज एक्सपर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड आई एम हियर टू टॉक अबाउट इट, स्टार्ट विद अ क्वेश्चन. There are other few tips that are very important कि whenever we are talking, 3 body parts which are, I would say, very important part of your speaking skill is your eyes, your hands and your smile. कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, उसमें आईज और स्माइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इसी तरह अगर आप अपनी ऑडियंस से कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हो, वो एक ज़ील कि हाँ लोग आपको सुनना चाहें, उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्ले विद योर आईज एंड स्माइल. यू शुड ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन योर फेस whenever you are in a public appearance, and use your eyes, cover the whole area. हर कोने से आप ऑडियंस को अपने साथ आइज के थ्रू कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं. एंड हैंड्स, दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. और हमारे हैंड्स जो हैं वो हमारे हमारे लिप्स के साथ सिंक में होने चाहिए. ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे अगर हम काम करें, प्रैक्टिस करें, so we can definitely improve our communication skills. And as I said, nowadays soft skill उतनी ही मैटर करती है जितनी hard skills. So this is the right time to work on your soft skills. जय हिंद, जय भारत.